एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 62, and like always we'll start our lecture by the Hadith Mubarakah. So today's Hadith Mubarakah is saying to us that cure of ignorance is to question. So if you want to cure the ignorance, and what is ignorance? Ignorance is about something that we do not know, the lack of knowledge, the lack of information. So about the prevention or the cure of ignorance, the very words of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam are saying to us that the cure of ignorance is to question. So until you question, you cannot cure, you cannot diminish, you cannot wipe out your ignorance. If you want to finish your ignorance, if you want to get rid of your ignorance, you need to ask questions from your teachers, from the parents, from every elder or every experienced person around you. And sometimes it is not necessarily important to ask the questions from the persons. If any particular experienced, learned person is not available to question, still you can cure your ignorance by asking the questions from the books. So books are the very good source to give you or to provide you with the relevant and required knowledge. So if you want to cure your ignorance and no exact relevant person is around you, so books are the greater source to consult, and you can ask as many questions as you want from the books. Nowadays books are very much available on the websites, on the social medias. We use social medias for hours for the different purposes, like for our entertainment or for killing our extra time, so-called extra time. Normally we don't have extra time, but so-called extra time. So if we use this much social media, why can't we use social media for our productive purposes? The productive purpose of the social media is to learn from it, to grab as much knowledge as we can. तो आप बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं सोशल मीडिया से, गूगल से. There are number of sites available on the websites on the Google which can provide you with the complete soft form of the books in PDF format, and PDF drive is one of them. आप वहाँ से ये सारी किताबें हासिल कर सकते हैं, आप इल्म गेन कर सकते हैं, इल्म को सीख सकते हैं. तो ये बेसिक आज की हदीस मुबारक है जो हमें बताती है कि आप अगर अपनी जहालत का ख़ात्मा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सवाल पूछना पड़ेंगे, और सवाल पूछते हुए आप इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखें, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो सवाल सिर्फ़ इस मकसद के लिए है ताकि उससे इल्म हासिल किया जा सके, ना कि वो इस मकसद के लिए है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, टाइम ड्रैग किया जाए, किसी की बेइज्जती की जाए. सवाल हमेशा इल्म हासिल करने के लिए पूछा जाना चाहिए. अच्छा जी, ये हदीस मुबारक से रिलेटेड था. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. टॉपिक इज़ रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रीवियसली वी डिड present perfect tense. Today is the term of past perfect tense. Now we'll discuss what past perfect tense is all about, how we can use it, and what are the basic and main features of this particular tense. And then obviously we'll go for the syntax or sentence structure of simple, negative, interrogative, and then double interrogative of this tense. So let's start without any further ado. Let me introduce you with the past perfect tense. So the introduction of past perfect tense will tell us that what kind of tense it is. First, we need to understand that it is the tense of storytelling. Yes, storytelling. This tense
is used majorly in majority of cases for storytelling and normally stories जो हैं वो पास्ट में होती हैं, लिहाजा पास्ट से रिलेटेड जो भी बात है वो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करें स्टोरी टेलिंग के हवाले से। दूसरा इसका एक सबसे जो अहम इस्तेमाल है about two events happened in past। बात समझ आ रही होगी आपको? अगर पास्ट में ही दो इवेंट हुए हैं तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि कौन सा इवेंट पहले और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है? अगर तो सिंपल पास्ट की बात करनी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज सफिशिएंट फॉर दैट। हम बता सकते हैं वो कल गया था, ही वेंट, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, मैंने मजमून लिखा था, आई रोट द ऐसे। लेकिन अगर दो इवेंट हुए हैं पास्ट में, दोनों पास्ट में ही हुए हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है? मैं कहता हूँ आई एट ब्रेकफास्ट एंड आई रोट द ऐसे, मैंने खाना खाया और मैंने ऐसे लिखा। सो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट कि मैंने खाना पहले खाया था, ब्रेकफास्ट पहले किया था या ऐसे पहले लिखा था? So there should be a difference between these two events, although both the events took place in the past, but still there should be a differentiation, or there should be the line which should divide these two events from each other. हमें पता तो चलना चाहिए कि पहले काम कौन सा हुआ। अब इसी एग्जाम्पल को इस तरह से लें, अगर मैं ये कह देता हूँ कि I had taken my breakfast before I completed my essay, तो अब आपको क्या समझ आया कि पहले कौन सा काम हुआ था? ऐसे लिखने वाला काम, सॉरी ब्रेकफास्ट लेने वाला काम पहले हो चुका था, मैं नाश्ता कर चुका था जब मैंने अपना ऐसे कंप्लीट किया। तो अब हमने क्या किया कि एक टेंस को तो पास्ट परफेक्ट में डाल दिया और एक टेंस को हमने पास्ट इनडेफिनेट में डाल दिया, ताकि हम दोनों इवेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें, एक सेंस क्रिएट कर सकें, एक ऑर्डर जनरेट कर सकें कि पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा हुआ। और ये ऑर्डर किस तरह से जनरेट किया हमने? पास्ट परफेक्ट टेंस को की मदद लेकर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद लेकर। सो इट टेल्स अस अबाउट टू इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट। इट एक्चुअली tells us about the order of two events took place in the past। अब आपको बात समझ आई होगी। ऊपर वाले पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करा, ये थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे कहा था, टेल्स अस अबाउट टू इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट। पास्ट में होने वाले दो इवेंट्स के बारे में हमें बताता है। इट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ टू इवेंट्स टुक प्लेस इन द पास्ट। वो दो ऑर्डर्स जो पास्ट में हुए थे उनके ऑर्डर्स को भी डिफाइन करता है। इसका ये रियल फंक्शन है। हम इसको देखते हैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करके। लेट्स सपोज बच्चों ये आपका प्रेजेंट है, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम। नाउ वन इवेंट happened here and one event happened here. This is called as event 1 and this is called as event 2 या 2। अब ये दो इवेंट हुए हैं, इवेंट 1 इवेंट 2, ये दोनों पास्ट में हुए हैं, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल से साबित किया था। ये दोनों इवेंट पास्ट में हुए, यहाँ से प्रेजेंट शुरू हो रहा है। अब ये वाला जो इवेंट था ये था I took breakfast। ये वाला जो इवेंट है ये कह रहा है he completed his task। अब ये दो इवेंट्स जो हैं, इवेंट 1 और इवेंट 2, ये दोनों पास्ट में हुए हैं,
लेकिन जब हम इनको बताएंगे, यहाँ पे तो आपने टाइम लाइन के ज़रिए से देख लिया कि ये इवेंट 1 था, टुक ब्रेकफास्ट, ये इवेंट 2 था, ही कंप्लीटेड हिज टास्क। अभी प्रेजेंट शुरू नहीं है, बात पास्ट में हो रही है। तो टाइमलाइन से तो आपको पता लग गया कि ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, पहले वो हुआ है बाद में ये हुआ है। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा आई टुक ब्रेकफास्ट, ही कंप्लीटेड हिज टास्क, तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि काम कौन सा पहले हुआ है। तो अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें, पहले वाले इवेंट को I had taken breakfast before he completed his task। अब आप देखें, अब हम अगर इसको आम लैंग्वेज में बोलते भी हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था, बिफोर ही कंप्लीटेड हिज टास्क, उसके काम ख़त्म करने से पहले। तो यहाँ पर हमें अब इवेंट 1 और इवेंट 2 कंफर्म हो गया। अब ये भी आपने बच्चों याद रखना है कि जो इवेंट पहले हुआ है, हमेशा इवेंट 1 को आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। इवेंट 1 हमेशा, ये जो इवेंट 1 है ये हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा ताकि ये इवेंट 1 बन सके, और इवेंट 2 जो है वो हमेशा हम पास्ट इनडेफिनिट में लिखेंगे। ये आपने याद रखनी है बात, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि 2 कामों पर मुश्तमिल हैं, 2 इवेंट्स पर मुश्तमिल हैं। तो उसमें फिर हमने जो है डिफ्रेंशिएट करना है और आइडेंटिफाई भी करना है कि ये किस तरह से होगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन था इस हवाले से कि ये किसकी बात करता है, पास्ट में 2 इवेंट्स की बात करता है। पहले इवेंट को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में, एंड सेकेंड इवेंट ऑलवेज इज़ डिफाइंड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। फर्दर हम इसकी डिटेल्स भी चेक करते हैं कि इसकी रिकग्निशन क्या है एज फार एज इन उर्दू और इन इंग्लिश। अब हम इसकी रिकग्निशन पढ़ लेते हैं। लें जी, रिकग्निशन हम देखते हैं। उर्दू में कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिया था वगैरह आता है। ये बच्चों उर्दू में इसकी रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है। उर्दू में अगर आपके पास जुमले के एंड में ये अल्फाज लिखे हुए आ जाए, कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिया था वगैरह, तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट की बात होगी। इंग्लिश में हम देखते हैं, इन इंग्लिश इसको किस तरह से डील किया जाता है और इसको किस तरह से पहचाना जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है, हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये लिखा हुआ आ जाए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, अगर बच्चों ये लिखा हुआ आ जाए तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट और दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दैट वाज द रिकग्निशन ऑफ दिस टेंस इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। अब हम इसके सिंपल जो फॉर्मेट है उसकी तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया कि इसका हैड ही इस्तेमाल होगा, और ये एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तमाम तरह के प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। और फर्दर इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस किया कि हमारे पास हैड ही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये आए, वी प्लूरल, यू, दे और नेम्स के साथ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम सिंगुलर देखें तो ही, शी,
इट और सिंगुलर नेम के साथ भी हैड ही इस्तेमाल हो रहा है। आई, वी, यू, दे, नेम्स, नेम, इट, शी, ही। आपने देखा कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तमाम के साथ वही यूज़ होगा। ही हैड, शी हैड, इट हैड, नेम हैड, आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड एंड नेम्स। अब अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में देखें, कॉन्ट्रैक्शन मीन जहाँ पे हम उसकी शॉर्टर फॉर्म में देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम इसको देखें, वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम देखते हैं कि हमने नॉर्मली ये आपको किस तरह लिखे हुए मिलते हैं। अगर हम आई के साथ हैड यूज़ करते हैं तो जो नेटिव्स हैं वो यूज़ करते हैं आयड। आयड मीन्स आई हैड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यू की, तो ये बच्चों इस तरह से यूज़ होगा, यू हैड। एंड सो ऑन। कॉन्ट्रैक्शन में आप इसको देख लें कि ये इस तरह से इस्तेमाल होगा बेटे। आइड, आई हैड, यूड, यू हैड, देड, दे हैड। नॉर्मली नेटिव स्पीकर इस तरह से इसको बोलते हैं। अगर उन्हें कहना है आइड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो वो कहेंगे आइड कंप्लीटेड माई वर्क। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। तो ये सिंपल की कॉन्ट्रैक्शन है। इस तरह से नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें बात की समझ नहीं आती और हम अपने टेंसेस में उलझ के रह जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से बात की गई। इसी तरह अगर हम इसकी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन देखें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई हैड नॉट। अगर हम इसको लिखेंगे कंट्रैक्शन में, जो नॉर्मली लिखा जाता है, आई हैड, आई हैडंट, आई हैडंट। इसी तरह बच्चों अगर आप लिख रहे हैं यू हैड नॉट, तो ये हो जाएगा सेम, यू हैडंट। एंड द स्टोरी गोज़ ऑन। आपको ये बात समझ आ रही है? हम कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं सिंपल में, आई हैड को आइड, यू हैड को यूड, दे हैड को देड, शी हैड को शीड, ही हैड को हीड, इट हैड को इटेड। जैसे ही नेगेटिव में आए, आई हैड नॉट, आई हैडंट, यू हैड नॉट, यू हैडंट, दे हैड नॉट, दे हैडंट, शी हैड नॉट, शी हैडंट। ये इस तरह से चलेगा। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं फर्दर कि सिंपल सेंटेंसेस जो हैं हमारे पास, उनकी कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से, उनका सिंटेक्स किस तरह से है, किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, वो हम देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल सेंटेंसेस। Simple. First, we have to chalk out the structure: subject plus helping verb plus verb third form plus object। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब इसमें मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब इसमें बच्चों हमारे पास है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस। हम इसमें जुमला ऐड कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वो मज़मून लिख चुका था, या हम इसको थे भी कर सकते हैं। वो मज़मून लिख चुके थे। अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं तमाम अपने सब्जेक्ट्स के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट हम सिंगुलर के साथ करते हैं।
आपने देखा कि वो मजमून लिख चुका था, ही हैड रिटन ऐसे, शी हैड रिटन ऐसे, अली हैड रिटन ऐसे, ये सिंगुलर थे। अब हम प्लूरल के साथ देखते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन होता है। तो बच्चों इसको तो आप देख सकते हैं कि आई हैड रिटन ऐसे, वी हैड रिटन ऐसे, यू हैड रिटन ऐसे, दे हैड रिटन ऐसे, एंड अली एंड असलम हैड रिटन ऐसे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर लिखा था, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया। देन यू शुड प्लेस योर हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हमने बात की है कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, सो पास्ट पार्टिसिपल वाज प्लेस्ड एंड देन आर ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेम इज़ द केस विद प्लूरल प्रोनाउंस। तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर था, जो सिंटेक्स था सिंपल का, वो हमने डिस्कस किया। अब हम नेगेटिव को देखते हैं कि नेगेटिव को किस तरह से डील करते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर ही लिखते हैं हम। सबसे पहले ड्रॉ वही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हैड, वो मजमून नहीं लिख चुका था। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को उसी तरह से देख लेते हैं। सिंगुलर के साथ ही, शी, नेम। पहले हम इसको सिंगुलर के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। ही हैड नॉट रिटन ऐसे, शी हैड नॉट रिटन ऐसे, नेम या अली या असलम जो भी आप नेम लिखेंगे, अली एंड असलम जो भी, हैड नॉट रिटन ऐसे। तो एक तो हम इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर में मेंशन किया था कि सबसे पहले वी आर सपोज टू प्लेस अ सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट। सब्जेक्ट इज़ देयर, हेल्पिंग वर्ब इज़ देयर, नॉट इज़ देयर। वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एंड देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया। प्लूरल को देखते हैं क्या प्लूरल इसी तरह से काम करता है। तो आई से हम स्टार्ट करते हैं, देन वी, देन यू, देन दे, देन अली एंड असलम। इसके बाद हम हैड प्लेस करते हैं विच इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब, देन not written ऐसे। इसको भी लेबल कर लेते हैं। ले बच्चों, आई हैड नॉट रिटन ऐसे, मैंने ऐसे नहीं लिखा या मैं ऐसे नहीं लिख चुका था।
वी हैड नॉट रिटन ऐसे, यू हैड नॉट रिटन ऐसे, दे हैड नॉट रिटन ऐसे एंड अली एंड असलम हैड नॉट रिटन ऐसे। ये हमारा नेगेटिव का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज ऑब्वियसली हम अपने लेक्चर के एंड पे इसको करेंगे ताकि हम इसको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क हैड। क्या वो मज़मून लिख चुका था? सबसे पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज पर द रूल, इसके बाद हम सिंगुलर ही, प्लूरल के साथ देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देख सकते हैं जी कि हैड ही रिटन ऐसे, क्या वो मजमून लिख चुका था? हैड ही रिटन ऐसे, हैड शी रिटन ऐसे, हैड इट रिटन ऐसे, हैड अली रिटन ऐसे, हैड आई रिटन ऐसे, हैड वी रिटन ऐसे, हैड यू रिटन ऐसे, हैड दे रिटन ऐसे, हैड अली एंड असलम रिटन ऐसे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव से रिलेटेड था। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, helping verb which is had, then subject, then we need to place not here, then verbs third form, then object and then question mark। उर्दू में इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है, क्या वो मज़मून नहीं लिख चुका था? ठीक है बच्चों, हम अपने लेक्चर को आज के यहीं पे अख्ताम करते हैं और इसके बाद फिर हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।